غیبی نظام سے پلنے کا مزاج بنائیں. آگے آپ زمانہ وہ جو اس دن ایک درویش کہنے لگے کہ علامات قیامت تو ساری پوری ہو گئی ہیں، بس اب تو آ جانا چاہیے. کسے؟ امام مہدی کو. علامات تو قیامت ساری پوری ہو گئی ہیں. مجھے ایک درویش نے بتایا. میں نے کہا جی آپ کو پتا ہو. مجھ سے پوچھنے لگے، کہنے لگے کیا خیال ہے، علامات قیامت پوری ہو گئی ہیں؟ جی آپ کو پتا، اللہ والوں کو پتا. یہ جتنی حدیث میں آتی تھی قیامت کی علامات، وہ کہنے لگے ساری پوری ہو گئی. اور ایک بات یاد رکھیے گا، غیبی نظام سے پلنا ان لوگوں کو نفع دے گا، ان لوگوں کو نفع دے گا کہ جو غیبی نظام کے بارے میں جان بھی چکے ہوں گے، مان بھی چکے ہوں گے، اور اس کا کوئی مشق بھی کر چکے ہوں گے. جو غیبی نظام سے متعارف نہیں ہوں گے، علامات قیامت جب ظہور پذیر ہوں گی، مکمل ہو کر امر الہی متوجہ ہوگا، پھر وہ بیچارے پریشان ہوں گے اور نمرودی چٹانوں میں پس جائیں گے. یاد رکھیے، یہ میری بڑی ہلکی پھلکی بات ہے پر بہت وزنی ہے. یہ جو آپ حضرات مشق کر رہے ہیں نا تسبیح خانے کی نسبت سے، غیبی نظام کی مشق کر رہے ہیں، تو سمجھ لیں کہ یہ آپ بہت بڑا طاقتور نظام پا رہے ہیں، بڑی طاقتور تاثیر پا رہے ہیں. یہ جو تسبیح خانے کے غیبی نظام کی مشق کر رہے ہیں، اللہ کے خزانوں سے پانا اعمال کے ذریعے، ایمان کے ذریعے، توکل کے ذریعے، تسبیح کے ذریعے، اللہ کے خزانوں سے پانا اللہ کے نام اور مدینے والے کے فرمان کے ذریعے. یہ جو آپ مسلسل مشق کر رہے ہیں، اس مشق پہ اللہ کے خزانوں کے نظام ہمارے سامنے کھلتا ہے اور اللہ پھر کر کے دکھاتا ہے. اس مشق پہ اللہ پھر کھول کے دکھاتا ہے، اور اللہ لا کے دکھاتا ہے، اور اللہ کر کے دکھاتا ہے. اس مشق یہ جو مشق آپ مسلسل کر رہے ہیں، کبھی میں کسی تسبیح کا فائدہ بتاتا ہوں، کبھی کسی وظیفے کا نفع بتاتا ہوں، کبھی کسی عمل کا فائدہ بتا ہوں، یہ مشق ہو رہی ہے. اور جو اس یقین کے ساتھ سفر طے کرتا گیا، وہ امام مہدی کے ساتھیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. ہاں، اور مہدی کے معنی کیا ہے؟ ہدایت یافتہ، جن کو اللہ پاک نے ہدایت دے دی. ایمان والے، اللہ والے، جنت والے وہی ہوں گے. امام مہدی کے ساتھی ہوں گے جنت والے، وہی جنت میں جانے والے، انہی کے قافلے میں، انہی کے ساتھ جنت میں. تو یہ پھر انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا جو غیبی نظام کا تعارف پا لے گا، اور جو غیبی نظام کے تعارف کی مشق کر لے گا، اور جو غیبی نظام کے تعلق اور تعارف کو زندگیوں میں سمو لے گا. اللہ اس کو کھلا کے دکھائے گا، پلا کے دکھائے گا، اللہ اس کو دنیا میں سجا کے دکھائے گا، اور دنیا آخرت کی نعمتیں عطا کر کے اللہ دکھائے گا. کس کو؟ جو بندہ غیبی نظام سے پانے کی مشق کر لے. کہ 1995 میں والد شام کو دفتر سے آخر اخبار پڑھ رہے تھے. والدہ ساتھ بیٹھی دن بھر کی باتیں کر رہی، بڑی بیٹی ہوم ورک کر رہی، امی سے سوال پوچھ رہی ہے، اور چھوٹا بیٹا کھلونوں سے بیٹھا کھیل رہا ہے. یہ سب ایک جگہ ہوتے ہیں، ہنسی مذاق چل رہی، بات چیت چل رہی، ایک مضبوط رشتہ، خاندانی نظام قائم ہے. اب آئیے 2025 کی لاہور کی ایک فیملی کی طرف. ابو فون پر خبریں دیکھ رہے ہیں، امی ڈرامہ دیکھ رہی ہے، بیٹا آن لائن گیم کھیل رہا ہے، بیٹی سوشل میڈیا میں ہے. چاروں ایک ہی کمرے میں، مگر ذہنی طور پر سب الگ الگ ڈیجیٹل دنیا میں قید. نہ بات، نہ گفتگو، نہ ہنسی، نہ مذاق، نہ ایک دوسرے کا خیال، نہ ایک دوسرے کا احساس. صرف سکرین کی نیلی روشنی چہرے پر پڑ رہی. یہ منظر بظاہر بے ضرر لگتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اثرات بہت خوفناک ہیں. یہ صرف ایک گھر کا نہیں، بلکہ اس ملک کا نہیں، پوری دنیا کا عالمی ہے، اور پوری دنیا کے گھروں کا عالمی ہے. اس سکرین کے ایسے خوفناک جسمانی اور روحانی نتائج سامنے آ رہے ہیں جو ہمیں ہماری نسلوں کی دنیا اور آخرت کو برباد کر رہے ہیں. ہم اس سکرین کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ چاہ کر بھی اسے نہیں چھوڑ سکتے. اس سکرین نے ہمیں اپنے اندر اتنا جکڑ لیا ہے. آج میں آپ کو اس کا حل بتاؤں گا، آپ کو اس کے پیچھے چھپا ایک روحانی راز بھی بتاؤں گا. ایک ایسی مخلوق کے بارے میں بتاؤں گا جس کا کام اور ذمہ داری اور ڈیوٹی ہی لوگوں کو سکرین کا عادی بنانا ہے.
ये मखलूक हर मोबाइल इस्तेमाल करने वाले पर मुवक्कल होती है, उसके साथ होती है, हर वक्त उसे मुतासिर कर रही है। ये वीडियो आपको, आपकी नस्लों को बहुत मदद देगी जिंदगी के बदलने में। आखिर तक तवज्जो से देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा फैलाइएगा और आपकी नस्लें संवर जाएंगी। मेरे पास कुछ अर्सा पहले एक बंदा आया जिसने मुझे अपना और मुशाहिदा सुनाया। बताया कि रात को अचानक उसकी आंख खुली, उसके अपने बिस्तर के पास एक बंदरनुमा मखलूक को बैठे देखा जो उसके मोबाइल पर गेम खेल रहा था। तुम कौन हो? मैं मोबाइल फोन का मुवक्किल हूँ। मेरा काम यह है कि मैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा मोबाइल फोन में मसरूफ रखूं। क्या ये हकीकत है कि वो एक बंदरनुमा चीज है? समझ आती है। लोग कहेंगे दीवानगी है, लोग कहेंगे अफसाना है। ये कैसे मुमकिन है कि मोबाइल का भी कोई मुवक्किल होता है? कैसे मुमकिन है? बज़ाहिर तो मुमकिन नजर नहीं आता, लेकिन सच पूछें जब हकीकत हाल सच पे खुलती है फिर सब कुछ नजर आता है। एक रिसर्च के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के बच्चों का रोजाना स्क्रीन टाइम 2 घंटे से ज्यादा है, हालांकि ये 0 होना चाहिए। 60% लोगों ने एतराफ किया कि उनके बच्चे इस वक्त तक खाना नहीं खाते जब तक फोन न देख लें। बच्चों में जुबान सीखने में ताखीर, वर्चुअल ऑटिज्म, दूसरों से बातचीत, समझने, मेल जोल करने में दुश्वारी जैसे मसाइल सामने आ रहे हैं। ज्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से गुस्सा, झंझलाहट, मार कुटाई और बेसब्री का शिकार हो जाए। आजकल इंटरनेट पर हजारों वीडियोस मिल जाती हैं जिनमें वालिदैन अपने बच्चों को रोते हुए दिखा रहे होते हैं। बच्चे आकर स्क्रीन न मिले तो चीखते हैं, चिल्लाते हैं और शोर करते हैं। स्क्रीन के ज्यादा इस्तेमाल की वजह बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते और खेल कूद में नहीं मशगूल होते, जिसकी वजह से बच्चों में सुस्ती, काहली और मोटापा बढ़ रहा है। उनका सूरज की रोशनी से राब्ता कम हो जाता है। उसका नतीजा ये निकलता है कि जिस्म में वो ताकतवर कुव्वत है जिसकी वजह से नजर कमजोर नहीं होती, उस ना मिलने की वजह से नजर कमजोर हो रही है। अब ये मसला पूरी दुनिया में एक वबा की तरह फैल चुका है। ज्यादा स्क्रीन टाइम का दूसरा बड़ा नुकसान नींद की खराबी है। 5 से 17 साल के बच्चों पर की गई 67% स्टडी के बाद ये बात सामने आई कि ज्यादा स्क्रीन इस्तेमाल करने वाले बच्चों की नींद कम हो जाती है। फिनलैंड में एक की गई तहकीक के मुताबिक हर 1 घंटा इजाफी स्क्रीन टाइम बच्चों की नींद 10 मिनट कम कर देता है। चीन में भी ये नतीजा निकला कि स्क्रीन टाइम बढ़ने से नींद की खराबी का खतरा 12% तक बढ़ जाता है और इसकी वजह यह है कि स्क्रीन से निकलने वाली रोशनी हमारे जिस्म में नींद लाने वाले हार्मोन्स को दबा देती है। यही वजह बच्चों को देर से नींद आती है, गहरी नींद भी नहीं आती, पढ़ाई पर असर पड़ता है और कई नफ्सियाती मसाइल जन्म लेते। बहुत से वालिदैन बच्चों को खाने के दौरान मोबाइल या टीवी दिखाते हैं ताकि वो सुकून से खा लें। जब बच्चे खाने के वक्त मोबाइल या टीवी देख रहे होते हैं तो उनका ध्यान खाने से हट जाता है। उसकी वजह से वो नवाला मुंह में ज्यादा देर तक रखते हैं, अच्छी तरह चबाते नहीं हैं और नतीजा ये निकलता है कि हाजमे के मसाइल और दांतों में सुराख पैदा हो रहे हैं। ज्यादा स्क्रीन देखने का बरह रास्त ताल्लुक बच्चों की दिमागी नशोनुमा है। रिसर्च के मुताबिक जब बच्चे छोटी उम्र में ज्यादा मोबाइल और टीवी देखते हैं तो उनका दिमाग की साख्त बदल जाती है। दिमाग की वो सलाहियतें जैसे जज्बात पर काबू पाना, सोशली मेल जोल, मकसद हासिल करने के लिए मेहनत करना, खुद एतमादी और खुद अपनी देखभाल करना, ये सब चीजें कमजोर पड़ जाती हैं। और सबसे बड़ा नुकसान यह है कि स्क्रीन का एक नशे की तरह आदत बना देती है। वीडियो गेम्स, यूट्यूब वीडियोस दिमाग में एक खास हार्मोन जिसकी अशद जरूरत होती है उसको खारिज करते हैं और जो वक्ती खुशी देता है, लेकिन बार बार ऐसा करने पर दिमाग उसका आदी हो जाता है। इस तरह बच्चा या बड़ा घर वालों से दूर, तन्हा, गुस्सा और उदासी बढ़ जाती है। आपने कभी इस मसले का हल सोचा? इसका हल बज़ाहिर आसान लेकिन अमल करना मुश्किल है, लेकिन अगर कोई मेहनत करे तो भी मुश्किल नहीं। सबसे पहली बात, 2 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी हाल में स्क्रीन के करीब न जाने दिया। 5 साल की उम्र तक मोबाइल या कार्टून की जरूरत न हो और न जाने दिया जाए। बच्चों की तरबियत और खेल ही उनका असल मसरूफियत होनी चाहिए। अक्सर वालिदैन सहूलत के लिए मोबाइल बच्चों को पकड़ा देते हैं ताकि वो खामोश रहें और मसरूफ रहें, लेकिन याद रखिए ये वक्ती सुकून है। इसके बदले में आपको अपने बच्चे की सेहत, दिमाग, मुस्तकबिल को अपने दांव पर लगा देते हैं। नुकसान आज नजर नहीं आएगा, लेकिन कल को यह आदत बच्चों को पूरे मुस्तकबिल पर असर डाल सकती। अगर वालिदैन खुद मोबाइल के आदी हैं और बच्चों के सामने फोन इस्तेमाल करते हैं तो बच्चे भी ऐसा ही करेंगे। बच्चे बातों से ज्यादा अमल को देखते हैं, ये सच है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बच्चा मोबाइल से दूर रहे तो पहले खुद मिसाल कायम करें। 5 साल के बाद अगर बच्चे को स्क्रीन दिखानी है तो उसके वक्त और मवाद को लाजिम देखें कि वो देख क्या रहा है। तालीमी चीज दिखाएं और साथ साथ बाहर खेलने, जिस्मानी सरगर्मियों
किताबों और रूहानी महाफिल को तरजीह दें। घर में स्क्रीन फ्री जोन बनाएं। बेडरूम, डाइनिंग रूम, फोन या टीवी का इस्तेमाल सबके लिए मना हो। जब ये उसूल वालिदैन भी करेंगे तो बच्चे खुद ब खुद इस पर अमल करेंगे। याद रखिएगा, बच्चे का असल दोस्त मोबाइल नहीं आप हैं। अगर आप उन्हें वक्त देंगे, उनके साथ खेलेंगे, बात करेंगे, तो बच्चा स्क्रीन को कभी तरजीह नहीं देगा। आपको एक अमल भी देता हूँ, कुछ ही अर्सा करने से आप इस आदत से इंशाल्लाह आजाद हो जाएंगे। रोजाना अपने बच्चों और खुद की हिफाजत के लिए एक तस्बीह बैतुल खला की दुआ, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस, सुबह शाम पढ़ लें। और एक अमल है, नाक में उंगली रख के 66 बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, हर नमाज के बाद, वरना सुबह शाम। आप ये 2 अमल कर लें मोबाइल की नियत करके। कोई आदत है, कोई इल्लत है, कोई जिल्लत है, उसको छोड़ने छुड़ाने की नियत करके आप ये अमल करेंगे, आपको इसका बहुत ताकतवर, बहुत सेहतमंद नतीजा मिलेगा। चंद दिन, चंद हफ्ते जरूर कीजिएगा और मुस्तकिल करें। सारा घर कर ले, वरना घर के चंद अफराद करें, बहुत नतीजा बाकमाल लाजवाब मिलेगा। जरूर कीजिएगा। अपनी नस्लों को बचा ले, अपनी रूहानी सेहत और जिस्मानी सेहत का खूब ख्याल कीजिएगा। 31 अक्टूबर जुमे का दिन है, तो हमारे मुखलिसीन मेरे साथ बैठे हैं। तो मेरे सामने जनरल वकार साहब बैठे हैं, ब्रिगेडियर यूसुफ साहब बैठे हैं। तो जनरल साहब ने एक वजीफा बताया। क्या वजीफा आप जनरल साहब बताया? या कादर या नाफिर। जनरल साहब कहते हैं मैं हजारों पढ़ता हूँ। और मैंने पूछा फायदा क्या है, तो इन्होंने बेसाख्ता एक लफ्ज मुझे कहा, क्या? सुकून। कहते सुकून बहुत मिलता है। मैंने कहा सारी दुनिया तो है ही सुकून की तलाश में। सुकून के लिए तो आखिर बंदा नशे में चला जाता है। कैसे? और सुकून के लिए पता नहीं, और ये सुकून की तलाश में खुदकुशी की जाती है कि जिंदगी आप तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे। खुदकुशी जो की जाती है सुकून की तलाश में है कि आप इस जिंदगी से बेजार हो गए। कोई सुकून जी। आप दूसरा जो जिंदगी में आजमाया है वो है सूरत यासीन। वाह। जब भी कोई प्रॉब्लम आई है ना, हाँ, मतलब 1000 प्रॉब्लम होती है जी, सूरत यासीन पढ़ता हूँ, 1 दफा 2 दफा 3 दफा, थोड़े देर बाद वो प्रॉब्लम। आपने जनरल साहब की बात सुनी कि कहते हैं जब कोई मुश्किल आए मैं सूरत यासीन। और इस तरह ब्रिगेडियर यूसुफ साहब, आप भी अपने दफे बता रहे थे कि आपके घर वाले अपनी तस्बीह खाने, इनकी फैमिली अपनी तस्बीह खाने। असल तो खैर है जो इंसानियत को फैला दे, और इंसानियत प्यासी, हर फिरका, हर मजहब, रंग, नस्ल को खैर चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश है, दावा नहीं, अपनी खैर फैला रहा और इंसानियत तक फैल रही है।